Hello all. I welcome you all on behalf of Vidigya, your best pal for CLAT preparations. Vidigya has come up with a unique initiative wherein we'll be doing a 360-degree analysis of those topics which are very relevant and important as far as CLAT 2021 exam is concerned. So today our topic for the discussion is extension and suspension of IBC. IBC stands for Insolvency and Bankruptcy Code. So before starting, I'll just get you through the flow of content that how we'll be going ahead in this particular session. First of all, we'll see why this particular thing was in news. Then we'll see what is insolvency, what is bankruptcy, then what is the difference between a bill, act, or a code, right? Then we'll see about insolvency and bankruptcy code in detail, that how many schedules are there, how many sections are there in IBC. Then we'll have a look at the who are the facilitators who will take all the steps to make this step possible for liquidation. Like there are 5 facilitators. We'll also study about them as well. And after that, we'll study about the procedure of IBC which is being followed for companies or individuals if this procedure or if this proceeding has been followed. Then lastly, we'll have a look at the benefits of IBC. Okay, and which is followed by a quiz of 5 questions as well. So without any further ado, we are ready to begin. So first of all, why it was in news? This was in news because the government has suspended the or the government has decided to extend the suspension of IBC for 3 months. Okay, and this is the second time when the government has taken this step. Earlier, the same step was taken on 25th of June 2020 at the time of COVID-19. Because the reason cited was because of COVID-19, and the overall extension was for 6 months, which started on 25th of June 2020 and which ended on 25th of December 2020. And after that, on 31st of December, again, our government has decided to extend the suspension of IBC for additional 3 months so that it can, act as a, waiver or act as a extension for those people who are hard hit or suffered by COVID-19 pandemic. Okay, so the government has decided to extend the suspension of IBC till 31st of March 2021. Earlier it was extended or earlier it was suspended for 6 months, and now the second time it has been suspended or extended for 3 months, and which will end on 31st of March 2021 to help businesses cope with the lingering difficulties posed by the COVID-19 pandemic. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. In the next slide, we'll see what is insolvency and what is bankruptcy. Before starting that, we should know why this act is important or insolvency and bankruptcy code hota kya hai. It is basically, suppose an individual or a company and who is dealing with someone, but because of the cash crunch they are not able to pay. So IBC is a particular law which regulates or which facilitates the overall procedure, which includes liquidation, which includes the sale of assets. So all those things. That's why this insolvency and bankruptcy code, which came into effect in the year 2016, holds relevance and very important. So first of all, what is insolvency? Insolvency is a situation wherein an individual or a company is unable to repay their outstanding debts. Okay, so the spelling which has been written for debt is DEBT, but it is pronounced as debt. B is silent in it. So insolvency is a situation wherein an individual or a company is unable to repay their debts. So this is a situation of insolvency. But bankruptcy is when the same thing happened and when someone or a debtor declares it legally that yes, I'm legally to court that yes, I'm unable to repay my debts and now I am a bankrupt. So this is a situation of bankruptcy. This is the basic difference. Normal situation, if a person is not able to repay, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं. बट उसी को काउंटर करते हुए इफ समवन इज नॉट एबल टू पे और वो कोर्ट में जाता है डेटर, पर्टिकुलर पर्सन जिसको लोगों को पैसा देना बट ही और शी इज अनेबल टू पे, तो वो कोर्ट में जाके डिक्लेयर करता है दैट यस आई एम इंसॉल्वेंट, और कोर्ट ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करता है कि यस यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स, यू आर इंसॉल्वेंट. सो उसको जो दर्जा दिया जाता है दैट इज नोन एज बैंकरप्सी. क्लियर है? एक सवाल और यहां आता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया क्यों. इसका आने का मेजर रीजन ये है इन द ईयर 2016 बिकॉज बहुत सारे लॉस थे
जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग में जब सपोज किसी ने सिक्योर्ड लोन लिया और ही इज अनेबल टू रीपे और टू बैंक, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, उसको मतलब पर्टिकुलर एसेट को बेचती है। बेचने के लिए उस बैंक के पास सरफाइजी एक्ट होता है जो 2002 में आया था एग्जिस्टेंस में। तो इन द सेम वे काफी अलग अलग जगह से जो जो लूप होल्स थे उनको क्लब करके कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया, ताकि किसी भी तरह की इंडिविजुअल को, किसी को इंडिविजुअल को या फिर किसी कंपनी को ये पैसा लेन देन में अगर दिक्कत आ रही तो ही कैन टेक द हेल्प ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझते हैं कि किसी एक्ट में या बिल में या कोड में इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन समझेंगे बिल क्या होता है। एन अनपास्ड लॉ इज ए बिल। ठीक है, पूरा ड्राफ्टिंग हो गया बट ना लोकसभा में विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा दैट इज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, वहां और प्रेसिडेंट से अगर उसका एसेंट एसेंट मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। एक अनपास्ड लॉ है तो वो क्या होता है, बिल होता है, बट जैसे ही इट गॉट passed in Lok Sabha and Rajya Sabha and then got assent from the honorable president of the country, then it becomes an act. क्लियर है, बिल और एक्ट समझ गए अपन। फिर आती है बात कोड की। कोड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज अभी जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो कोड क्या होता है, कोड इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। जो ऑलरेडी लॉज है या ऑलरेडी जो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल सेबी एक्ट 1992, तो उन सबसे जो जो चीजें कुछ ना कुछ अपन ने लिए उसको क्लब करके एक अगर अपन ने एग्जिस्टिंग लॉ में से अपन ने एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया है, उससे कुछ ना कुछ चीजें ले लेके, उसके कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग्स ले लेके, तो उसको क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। इसको रीड कर लेते हैं। कोड इज बेसिकली a collection of already existing laws. In making a code, new laws will be included and existing laws may be repealed to constitute a complete system. क्लियर है। और इसी वजह से आईबीसी भी जो है एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, बिकॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है उसको कलेक्टिवली उसको मर्ज करके और कहीं ना कहीं आईबीसी हैज केम इनटू द पिक्चर इन द ईयर 2016। क्लियर है। अब थोड़ा सा अपन आईबीसी के बारे में पढ़ते कि आईबीसी क्या होता है। Insolvency and Bankruptcy Code 2016, as I had already told you earlier, is the bankruptcy law which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy. मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है या दो जनों में कोई लेन देन हुआ बट पैसे के कारण कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो उसको रेगुलेट करे, तो इसी वजह से किसको लाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को पिक्चर में लाया गया है, यू नो, विच सेव्स द इंटरेस्ट ऑफ the creditors as well as the debtors. क्रेडिटर बेसिकली वो होता है जिसने पैसा उधार दिया है और डेटर जिसने पैसा उधार पे किसी से लिया है। ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोड हैज डन अवे विद ओवरलैपिंग प्रोविजंस कंटेन्ड इन वेरियस लॉज। जैसा मैंने आपको बताया ना, कोड इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस एग्जिस्टिंग लॉज। तो इन द सेम वे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो लॉज है उसकी कुछ ना कुछ चीजें या काफी सारी चीजें लेके क्या बनाया गया है, एक फाइनल ड्राफ्टिंग हुई है और जिसको आईबीसी के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन से लॉज आते हैं, बेसिकली मेजरली जो आते हैं वो देयर आर 4 लॉज। फर्स्ट इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985, पहला ये आता है। दूसरा आता है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। थर्ड, सरफाइजी दैट इज द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, which as I had already told you, the Sarfaisi Act came into the picture in the year 2002, and the last is the Companies Act 2013. तो इससे अपन को ये क्लियर हुआ थोड़ा सा कि आईबीसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सरफाइजी में से भी ली गई है, कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कंपनीज कॉर्पोरेट की अगर बात करते हैं उनके भी इंटरेस्ट जो है उसको ये रेगुलेट करेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करने में। उसके अलावा कंपनीज एक्ट जो कॉर्पोरेट्स की अपन ने ऑलरेडी बात करी, फिर रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उन सब की चीजें जो ओवरलैपिंग प्रोविजंस थे या कहीं ना कहीं जो चीजें कहीं ना कहीं विच आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो दिस कोड सफाइस ऑल दीज थिंग्स एंड दिस विल इवेंचुअली हेल्प इन सॉल्विंग ऑल द डिस्प्यूट्स विच आर यू नो राइट नाउ गोइंग और विच वर ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम। तो उनको उन सब चीजों को सही करने के लिए दिस हैज केम इनटू द इफेक्ट। बट अभी ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इसको सेकेंड टाइम एक्सटेंड करने की जरूरत है। दिस टाइम इसको एक्सटेंड कितने समय के लिए गया, 3 मंथ्स के लिए।
फ्रॉम 1st of January 2021 to 31st of March 2021. आगे बढ़ते हैं, आईबीसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि कौन कौन कितने सेक्शंस, कितने शेड्यूल्स वगैरह. तो आईबीसी में टोटल, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हैज 255 सेक्शंस एंड 11 शेड्यूल्स. क्लियर है? कितने? 255 सेक्शंस एंड 11 शेड्यूल्स. ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें. कभी एलेट में या फिर स्लेट में आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. फिर इट हैज चेंज द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप. दिस इज बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ पाथवे कि आपके क्या राइट्स है. आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और वो किसी से पैसा मांगती है, बट उनको पता है कि पैसा नहीं आ रहा, काफी समय से दे आर डिमांडिंग, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि यस यू हैव 180 डेज कि आप उनसे बात करके पैसा ले, और फिर भी नहीं होता तो यू कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स व्हिच हैड बीन लेड डाउन इन द आईबीसी. इन द सेम वे इंडिविजुअल के केस में होता है, या इन द सेम वे कोई स्मॉलर कंपनी से केस में होता है, तो 90 डेज का रहता है और इसको 45 डेज और एक्सटेंड किया जा सकता है. तो वो सब चीजें इसमें है. तो डेटर और क्रेडिटर का जो रिलेशन है उसको क्लियरली डिफाइन करता है कौन? आईबीसी. थर्ड, व्हेन अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट अकर्स, क्रेडिटर्स गेन कंट्रोल ओवर डेटर्स एसेट्स. बिकॉज कहीं ना कहीं क्रेडिटर ने, जिसने पैसा दिया है, उसने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ली है और डेटर उसका पेमेंट नहीं कर पा, तो in order to get the money back from debtor, the creditor has only option, that is to sell that particular asset to get their sum. So वो पैसे जो उन्होंने दिया था वो उनको नहीं मिला, तो उनको कहीं ना कहीं वो पैसा लेना है. तो उनके पास क्या ऑप्शन है? जो उन्होंने एसेट लिया था किससे? डेटर से, तो उसको अब क्या करेंगे? सेल करेंगे. अंडर आईबीसी, डेटर एंड क्रेडिटर बोथ कैन स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईच अदर. दोनों रिकवरी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं, डेटर भी और क्रेडिटर भी. डेटर कौन होता है? जिसने पैसा उधार लिया है. क्रेडिटर कौन हो गया? जिसने पैसा उधार दिया है. आगे बढ़ते हैं. जैसा मैंने कंपनी का और मतलब जो कॉर्पोरेट से बड़ी कंपनीज उनका बताया था, अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और स्मॉलर कंपनीज या स्टार्टअप्स जिनका टर्नओवर 1 करोड़ है, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं. तो इट प्रोवाइड्स फॉर अ टाइम बाउंड प्रोसेस. ये सबसे बेस्ट चीज है इसकी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क दिया है. इसमें आपको, इफ यू आर एबल टू पे, वेल एंड गुड, योर रिलेशन इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन. बट आप नहीं पेमेंट कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं जो लिक्विडेटर को अपॉइंट करना, फिर पूरा प्रोसीडिंग, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट और अकाउंट, फिर जो जो पैसा मांगते हैं उनको सबको बेचना, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी. क्लियर? कंपनीज हैव टू कंप्लीट द एंटायर इंसॉल्वेंसी एक्सरसाइज विद इन 180 डेज अंडर आईबीसी. अपन को पता है कि हाँ वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, खत्म है, उसने मना ही कर दिया, तो कंपनीज का कितना समय होता है? 180 दिन का समय होता है. और अगर क्रेडिटर ऐसा समझता है कि इसको डेडलाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशंस, तो कहीं ना कहीं वो भी किया जा सकता है. The deadline may be extended if the creditors do not raise objections on the extension. फॉर स्मॉलर कंपनी, ये अपन ने बड़ी कंपनीज की बात करी, कॉर्पोरेट्स की. और फॉर स्मॉलर कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1 करोड़, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, द होल एक्सरसाइज ऑफ इंसॉल्वेंसी मस्ट बी कंप्लीटेड इन 90 डेज. वहां पे कितना था? 180 डेज का टाइम था. बट कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स है उनको कितना समय है? जिनका टर्नओवर विच इज लेस देन 1 करोड़, तो उनको समय दिया गया 90 डेज का, और विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 45 डेज एज वेल. ठीक है? तो बेसिकली 135 डेज तक अपन एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें, अगर एक्सटेंशन अपन लेते हैं तो. इफ डेट रेजोल्यूशन डजंट हैपन, द कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन. पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है. लिक्विडेशन क्या होता है? इट इज अ मतलब इट इज अ प्रोसेस वेर एन ऑल द एसेट्स of the debtor are being sold up. A separate person, a liquidator, is appointed who takes care of all the necessary things, that to he makes a proper list that what is the priority, that whom to pay first, right? Secured debtors, secure creditors, preferential creditors, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो उन सबके एक प्रॉपर लिस्ट एक लिक्विडेटर अलग से अपॉइंट होता है, विच चार्जेस ए फी एज वेल. क्लियर? अब समझते हैं हु आर द फैसिलिटेटर्स, कि इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को अगर अपन बात करते हैं तो किस तरह से ये आगे बढ़ती, कैसे चलती है आईबीसी की. तो दे आर 5 फैसिलिटेटर्स ऑफ आईबीसी. फर्स्ट इज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. ये लोग क्या करते हैं? ये बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी की या ये पूरी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं. जैसे दीज प्रोफेशनल्स विल एडमिनिस्टर द रेजोल्यूशन प्रोसेस, मैनेज द एसेट्स ऑफ द डेटर, राइट? बिकॉज वो कहीं ना कहीं डेटर पेमेंट नहीं कर पा रहा था, उसको लिक्विडेट करेंगे, कहीं ना कहीं बेचेंगे, तो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं. एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर क्रेडिटर्स टू असिस्ट देम इन डिसीजन मेकिंग. तो डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मध्यस्थता करने वाले मीडिएटर के रूप में द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वर्क्स.
क्लियर. सेकंड फैसिलिटेटर ऑफ आईबीसी इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वो किसके अंडर में वर्क करते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के अंडर में. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स विल बी रजिस्टर्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. सपोज फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर और शेयर ब्रोकर or someone new who wanted to be a stock broker or a share broker, he must be registered with stock exchange. Along with that, it has to be registered with RBI or SEBI as well. SEBI compulsorily as well. So in the same way, these insolvency professionals have to be necessarily registered with insolvency professional agencies. The agencies conduct examinations to certify insolvency professionals and enforce a code of conduct for their performance. Continuous review होता है कि मतलब एग्जाम्स के थ्रू उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है और उसी के बाद हर कुछ ना कुछ समय 6 महीने साल भर जो भी उन्होंने आपस में उनकी नॉर्म्स कहते हैं उनके हिसाब से उनकी रिव्यू होता है, उनका रेटिंग होता है कि आर दीज पीपल वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन और इन द राइट पाथवे और नॉट. ठीक है, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. थर्ड आता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज बेसिकली क्या होता है कि कितने एसेट से क्या वैल्यू है उस पूरी सब चीजों को निकालना. क्रेडिटर्स विल रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेट ओ टू देम बाय द डेटर. कितना वो पैसा मांगते हैं. सच इंफॉर्मेशन विल इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ डेट, लाइबिलिटीज एंड डिफॉल्ट्स. इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज फॉर एग्जांपल डेटर है. एक डेटर है जिसने अलग अलग फॉर एग्जांपल 5 लोगों से अलग अलग लोगों से पैसा ले रखा है. टोटल उसका ओवरऑल उसका जो लोन है वो सपोज 1,20,00,000 का है, बट जो उसका एसेट्स है जो है वो 1.5 करोड़ में सेल हो रहा है. वो तो इन सब के डॉक्यूमेंट किसको कितना जाएगा, कब जाना है, वो सब चीजें कहाँ आती है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज में. तो 5 जनों को पेमेंट किस तरह से होगा, पहले किसको होगा, बाद में किसको होगा. बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी मस्ट नोट डाउन कि ये दिस इज नॉट लाइक कि हाँ मेरा उससे अच्छा रिलेशन है तो मैंने उसको पहले पेमेंट कर दिया. दिस इज अ पर्टिकुलर फ्लो. इफ वी आर गोइंग इनटू लिक्विडेशन ना, दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे टू दीज पीपल, देन you need to pay to these, right? So there is a particular process which has to be followed in this. So till now we have studied 3 facilitators of IBC. Now we'll study the remaining 2, that is the fourth is the adjudicating authorities. What is this? The proceedings of the resolution process will be adjudicated by the NCLT, that is National Company Law Tribunal. For companies और individuals की बात करते हैं तो debt recovery tribunal होती है. ये अलग अलग उसने बाइफरकेशन कर दिया कि अगर आप कंपनीज हैं या कंपनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? एनसीएलटी में जाना पड़ेगा, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. और अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT फॉर इंडिविजुअल्स. The duties of the authorities will include approval to initiate the resolution process, appoint the insolvency professionals and approve the final decision of creditors. Clear है? अभी तक अपन ने we had studied 4 facilitators of IBC. Now we'll move ahead to the last one, that is the Insolvency and Bankruptcy Board. This board, suppose सेबी की बात करते हैं. सेबी क्या करता है? पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है. आरबीआई क्या करता है? पूरे बैंकिंग को रेगुलेट करता है, बैंकिंग की फंक्शनिंग को हर एक चीज को रेगुलेट करता है. इन द सेम वे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो किसको करता है? पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है. इन द सेम वे दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड विल टेक केयर ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग और हु आर अंडर द एम्बिट ऑफ IBC. इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ गए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आ गई, यूटिलिटीज वाला पार्ट आ गया कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज का आ गया, लिक्विडेशन की प्रोसेस. मतलब उसको ओवरऑल किसी भी तरह की किसी को तकलीफ है, कोई समस्या है, सो दिस इज द अटमोस्ट अथॉरिटी वेर एन इंडिविजुअल और वी कैन से डेटर और ए क्रेडिटर और ए कंपनी कैन गो फॉर द प्रोसीडिंग्स. क्लियर है? आफ्टर हैविंग ए लुक एट द फैसिलिटेटर वी विल सी द प्रोसीजर ऑफ IBC का प्रोसीजर क्या होता है. सो 4 स्टेप बहुत इजी है, अपन ने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फर्स्ट, व्हेन अ डिफॉल्ट अकर्स द रिजोल्यूशन प्रोसेस मे बी इनिशिएटेड बाय डेटर और ए क्रेडिटर. ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब अपन IBC के बारे में पढ़ रहे थे कि डेटर भी उसको प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है एंड इन द सेम वे क्रेडिटर कैन ऑल्सो इनिशिएट द process. Second, a committee consisting of the financial creditors will take a decision regarding the future of the outstanding debt owed to them. एक पर्टिकुलर कमिटी बनाई जाएगी और वो डिसाइड करेगी किस तरह का पेमेंट का रिजोल्यूशन या डिसबर्समेंट होगा. They may choose to revise the debt owed to them or sell, liquidate
the assets of the debtor to repay the debts owed to them. If a decision is not taken in 180 days, the debtor's assets go into liquidation. जो अपने कंपनी के केस में ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था. और इन द सेम वे अगर स्मॉलर कंपनीज है तो 90 डेज और 45 डेज का एक्सटेंशन उसमें मिलता है. और तब नहीं हो पाता तो फिर कहीं ना कहीं कहाँ जाती है वो पूरा प्रोसेस, लिक्विडेशन में चला जाता है. लास्ट, इफ द डेटर गोज इनटू लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो अपन ने फैसिलिटेटर्स में पढ़ा था, पहला फैसिलिटेटर एडमिनिस्ट्रेट्स द लिक्विडेशन प्रोसेस, पूरे उस लिक्विडेशन प्रोसेस को, जिसमें मैंने आपको बताया कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें प्रेफरेंसेज होती है, किसको पहले पेमेंट किसको बाद में पेमेंट, वो पूरी सब चीज, एसेट्स कितना रियलाइज किया वो डेबिट साइड में आता है, वो सब चीज होती है. Proceeds from the sale of the debtor's assets are distributed in the already established order of precedence. Order of precedence क्या हो गया कि जो liquidators financial statement of account बनेगा उसमें एक proper priority list है कि हाँ 1 करोड़ 20 lakhs अपन को ओवरऑल रीपेमेंट करना है, 1 करोड़ 50 lakhs अपना एसेट्स को सेल करने पाया. तो आउट ऑफ दैट 1.5 करोड़ दैट वी हैव गॉट, सबसे पहले प्रायोरिटी पे किसको पेमेंट होगा, सपोज बैंक को होगा तो बैंक को दिया जाएगा. देन जो अपने फॉर एग्जांपल प्रेफरेंशियल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको दिया जाएगा. देन इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको दिया जाएगा. और फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा वो जो उसका ओनर है उनके पास, दैट इज 30 lakhs जो इस केस में बच रहे हैं, अपन ने जो एग्जांपल लिया हो जाएगा. क्लियर है? आई थिंक इससे अपन को काफी चीजें इसके बारे में समझ आ गई कि आईबीसी क्या होता है, क्यों एक्सटेंड किया गया, कहीं ना कहीं बिजनेसेस को बचाने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए कुछ और समय, बिकॉज कोविड-19 चल रहा था. फिर किस तरह से प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, हु आर द फैसिलिटेटर्स, क्या प्रोसीजर रहता है वो अपने पढ़ा. लास्ट एक चीज पढ़ेंगे दैट इज बेनिफिट्स ऑफ आईबीसी. आईबीसी पिक्चर में आया अभी रिसेंटली 2016, तो इसके बेनिफिट्स क्या गया. तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो 4 बेनिफिट है. दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करने में थोड़ी सी आसानी हुई, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर कोई नया स्टार्टअप है या कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहा है और कैश क्रंच होता ही है, और ऐसे समय पे अगर कोई उसको बचाने के लिए नहीं है बिजनेस को, कि अगर किसको पैसा दिया एंड इफ दैट्स अनदर पार्टी इज नॉट पेइंग और द थर्ड पार्टी इज नॉट पेइंग द सम, तो उनको जो बिजनेस है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं आईबीसी will play a major role. So that's why it is one of the benefit of IBC कि ease of doing business. Second, less NPAs. NPAs is basically non-performing assets. NPAs कम होंगे क्योंकि प्रोसीडिंग्स का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क है, उसमें आपको पूरी प्रोसीडिंग करनी नहीं हो तो फिर आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, राइट. थर्ड, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. कहीं ना कहीं फेथ बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. एंड लास्ट इज एनकरेज टू एंटरप्रेन्योरशिप. जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी कहीं ना कहीं रिपरकशंस है कि इट विल एनकरेज टू एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, व्हिच इज क्वाइट एसेंशियल फॉर द सस्टेनमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. क्लियर है? आई थिंक विद दिस वी हैव गॉट अ वेरी गुड ओवरव्यू अबाउट दिस टॉपिक, एंड नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज क्विज. सो क्वेश्चन नंबर 1, the government has decided to extend the suspension of the insolvency and bankruptcy code till, तो कब के लिए, अभी के केस में ये अभी की बात कर रहा है, तो extended till 31st of March 2021. कितने समय के लिए? 3 months के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, dash is a decision passed into law. In the legal context, it can be a statute or decision by legislature after a bill has been passed. तो ये अपन ने ऑलरेडी जब अपन ने इनिशियल फ्यू स्लाइड्स में बिल, एक्ट और कोड के बारे में पढ़ा था तब अपन ने डिस्कस किया था. तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं. Introduction of this code has done away with overlapping provisions contained in various laws. First is Sikh Industrial Companies Special Provisions Act 1985, बिल्कुल सही है. Then Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993, ये भी सही है. Third, The Companies Act 2013 भी सही है. और एक और था जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो कौन सा था? सरफाइजी एक्ट 2002. सो सारे सही है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज टाइम टेकन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ केसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी लॉ इज 340 डेज. अभी की अगर बात करें तो 340 दिन एवरेज समय लगता है अगर अपन बात करें. बट आईबीसी जब नहीं था तो कितना समय लगता था? दिस इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट, और मतलब बहुत बड़ा लैंडमार्क सक्सेस है कि आईबीसी के पिक्चर में आने से कहीं ना कहीं जो समय पहले एवरेज टाइम रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट 4.3 ईयर्स हुआ करता था, नाउ इट हैज कम डाउन टू लेस देन 1 ईयर to only 340 days. So the correct answer of this is option B, that is 4.3 years. Now we'll move to the last question of this particular session. Through insolvency and bankruptcy code,
amendment ordinance in dash the home buyers were deemed to be financial creditors under the IBC. तो ये अपन ने पहले डिस्कस नहीं किया बट होम बायर्स को आईबीसी के अंडर में लिया गया इन द ईयर 2018. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज अ रीसेंट अपडेट बिकॉज दो इसमें बीच में ऑर्डिनेंस पास किए गए थे और उसमें से एक ये भी था और जो बहुत इंपॉर्टेंट था. So the correct answer is 2018. So that's all from my side. I think with this we have got a very good overview and very good, roundup, a complete 360-degree analysis of this topic. And if we have a look at the actual CLAT 2020 paper, तो कहीं ना कहीं जो second question की अगर अपन बात करते हैं CLAT 2020 की, तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंकिंग से रिलेटेड था तो कहीं ना कहीं ये भी बैंकिंग का था. तो सो दैट्स व्हाई वी हैव थॉट कि इस टॉपिक को भी कंसिडर करना चाहिए. और कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें एलेट और स्लेट से रिगार्डिंग भी बन सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ें. विद दिस वी आर रेडी टू wind up the session. So be positive, stay logical, stay ahead with Vidhya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more stuff with relate to CLAT and other law entrance exam, you can visit the URL which has been mentioned in the description section of this video. And you can also join our Telegram channel as well. That's all from my side. Thanks for watching.